for a beautiful event. This is 1276 Free Talk by Shri Om Prakash Vidyarthi, retired IFS, retired as Principal Chief Conservator of Forest, J&K Government, a post equivalent to the post of Chief Secretary. I will deliberate later about the career and achievement of Vidyarthi sir. He is currently the incumbent member of Biodiversity Council of Jammu and Kashmir government. As I already told you, he has served as PCC chief as well as director of remote sensing and ecology, forest remote sensing and ecology. Born in 1960 in Ramnagar, he graduated from this college only, GGM Science College, in 1979. Therefore, we are proud to say that he is an alumnus of GGM Science College, Jammu. He did his graduation in 1979 and went on to do masters from Jammu University in 1981. He qualified Jammu and Kashmir Administrative Service Exam, which is known as KS or JKS, in 1984, and then went on to qualify Indian Forest Services exams in 1986 and was appointed as District Forest Officer, now popularly known as DFO, in some area of J&K. There are a number of achievements as I have received the data, but just a few that he has been DCF Communications and Extension, J&K 3 Forestry Department, DCF State Vigilance Organization, Regional Director, Pollution Control Board, Joint Director, Conservator of Forests, Additional PCC Chief, Director Ecology, Environment and Remote Sensing. The notable thing among all is he has been an expert, having a lot of expertise and experience in the field of taxonomy, ecotourism, documentation of traditional knowledge, biodiversity conservation and medicinal plant conservation. He has contributed a number of journals, and as I have received data from web sources, it has mentioned that he has published 3 documented original papers in reputed national and international journals. He has studied 45 books, which include 4 books on forestry and non-forestry, then 4 books of poetry. He does poetry also. Besides being a forester, a staunch botanist, biodiversity conservationist, he is also a great poet, having been credited 4 poetry books, then 3 poetry books in Hindi also, 4 story books in Dogri, and 10 forestry books in Dogri. And for one of his books, he has been awarded with Sahitya Academy Award in 2002. The language was Dogri, and the book was a Dogri version of Boond Boond Smritiyam. It is the Hindi version of some Dogri language, Boond Boond Smritiyam. And he was awarded by Sahitya Academy New Delhi for the Sahitya Academy Award by Sahitya Academy New Delhi. In 2002, he started a very beautiful program for conservation of nature and natural resources. All it was a great campaign, especially for J&K, with the name of Free Talk, which was launched on 19 December 2010. And in a very short period of time, on 19 December, after 3-4-5 days, he is going to celebrate the first decade of that is 12th year of this Free Talk. Till now, he has conducted as many as 1275 programs across the Jammu and Kashmir state and maybe beyond the state also.
Today is his 1276th birthday. He lives in Jammu with his wife Dr. Kiran Sharma and his son Kailash at Chhani Himmat, Jammu. So this was a brief introduction, very brief introduction about Vidyarthi sir. You are very much blessed that you are having an institution before you, sir. And I hope that the session which is going to be conducted after this introduction, it will be very much fruitful and you will really relish the beauty, authority and passion of this man for plants and the environment. Thank you very much. एडेटोडा वासी का बोटानिकल, लेकिन आजकल वो भी बदल गया। आजकल उसका नाम है जस्टिशिया एडेटोडा, जस्टिशिया जेलेनिका। पर ये हमारी जम्मू वाली कॉमन ब्रैंकेट है। मैं दिस इज अवेलेबल इन नॉर्थ इंडिया। सर वहाँ पे च्यवनप्राश में पड़ती है, आयुर्वेदा की बहुत सी दवाइयों में। आज बात करेंगे, अगर हमें कहीं दिख गई ब्रैंकेट दिखाएंगे। ऐसे भी सर कवर करते हैं जब हम वो लगाते हैं ना। हाँ, साख लगाते हैं, वही तो कह रहा हूँ। कवर करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए था, क्यों नहीं पता आपको? लेकिन साख नहीं लगाते हैं नवरात्रों में, इसको कवर करते हैं, ब्रैंकेट से कवर करते हैं। हेनरी बेडोम जो थे, उनका क्या बताया? रिचर्ड हेनरी बेडोम। ही डिस्कवर्ड न्यू ब्रैंकेट फ्रॉम साउथ इंडिया, और उसका नाम क्या है? आफ्टर बेडोम। स्पीशीज इज बेडोमियाई। तो पहले जब एडेटोडा वेसिका कहते थे, एज पर टैक्सोनॉमी जो नाम था, तो उसका नाम था एडेटोडा बेडोमियाई। लेकिन आजकल एडेटोडा का जीनस ही बदल दिया गया है। आज हम क्या कहते हैं? एडेटोडा को कौन सी जीनस दी हुई है? जस्टिशिया। तो जस्टिशिया नाम से वो जो साउथ इंडिया की ब्रैंकेट है, उसका क्या नाम हो गया? जस्टिशिया बेडोमियाई। तो कई बार बड़ा अजीब लगता है ना, अगर आपको कनेक्शन नहीं पता हो, आप बोलोगे क्या नाम है बेडोमियाई, है ना? इट लुक्स वेरी यहाँ आर जैसा, लेकिन इट इज रेस्पेक्ट और ऑनर टू द CCF रिचर्ड हेनरी बेडोम। और जो साइकस आप देख रहे हो, दोनों, एक पीछे है एक आगे है, ये है साइकस की बड़ी स्पीशीज हैं। ये साइकस रेवोल्यूटा है, बट दिस इज नॉट एंडेमिक। हमारे पास कुछ एंडेमिक साइकस हैं, मतलब found only in small part of one is named after Beddoe because he is the man who discovered new cycas from Andhra Pradesh. और वो जो साइकस है, साइकस जीनस तो साइकस ही रहेगा। जैसे ये साइकस रेवोल्यूटा है, साइकस सर्सिनालिस हमारा है इंडियन का, लेकिन जो एंडेमिक है, जो बड़े थोड़े से एरिया में, वो है साइकस बेडोमियाई। क्या नाम है? फिर ज्वालोजी पढ़ते हो? पढ़ी हुई है? उसमें फ्रॉग्स के नाम होते हैं। वो फ्रॉग्स होते हैं, टोड होते हैं, ठीक है ना? फ्रॉग्स जो होते हैं वो पानी में होते हैं, ठीक है ना? और एक होता है टोड। टोड जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ में ज्यादा है, और उसकी स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई सी होती है, वाटी होती है, उसको बोलते हैं टोड। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। तो टोड का साइंटिफिक नाम क्या है? जैसे हमारे बड़े कोई दोस्त होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, दत्ता होते हैं, दत्ता, है ना? दत्ता इज नॉट ए टफ नेम। तो एक टोड का नाम है दत्ता फ्राइनस, ठीक है? जम्मू में भी है दत्ता फ्राइनस, लेकिन जो जम्मू वाला है वो है, उसका स्पीशीज का नाम है मेलानोस्टिक्टस। लेकिन जो बेडोम साहब ने खोजा साउथ इंडिया से, वो था दत्ता फ्राइनस बेडोमियाई। नजा लगाओ। नॉट ओनली दैट, वी हैव सम ट्रीज नेम्ड आफ्टर बेडोम। कौन से? एक दो का नाम आना चाहिए। एक प्लांट है, जैसे उसको बोलते हैं लिट्सिया, जैसे दालचीनी होती है ना, उसी फैमिली का प्लांट है, हमारे पहाड़ों में होता है। संगला कहते हैं लोग, चिंडू भी कहते हैं लोकली। अगर आप जाएंगे पत्नीटाप तो वहां पे भी मिलेगा। वो लिट्सिया है। लेकिन यो एक लिट्सिया जो बेडोम साहब के नाम से, हालांकि मैंने देखा नहीं है आज, क्योंकि वो इतना यूनिक है, रेयर है, पता नहीं कहाँ है, उसको ढूंढना पड़ेगा, और पता नहीं लाइफ टाइम में मैं ढूंढ पाऊंगा कि नहीं। आई हैव नॉट सीन दैट लिट्सिया बेडोमियाई। तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर कितना, नॉट ओनली दिस, स्नेक स्टैंड्स नेम्ड आफ्टर बेडोम, बेडोम्स कील बैक स्नेक, लिजर्ड्स, ऑफियोसाप्स, एक जर्डनी है, अखनूर में होती है, जो हमारी किरली टाइप है, वो एक किस्म के लिजर्ड है। जर्डनी तो जर्डन थे एक और बर्ड वॉचर, जिन्होंने परिंदों के ऊपर बड़ा काम किया। मैं पैराकीट कह रहा, मेरी बात भी करो। तो जर्डन इज द ऑर्निथोलॉजिस्ट, ब्रिटिशर थे वो, उन्होंने काम किया, तो उनके नाम से जर्डन्स आई इज द कॉमन नेम ऑफ ए लिजर्ड फाउंड इन अखनूर और जम्मू रीजन।
लेकिन जो साउथ इंडिया से मिली उसका नाम था ऑफियोसास बेडोमियाई, माने बेडोम्स। तो किस तरह के खूबसूरत नाम होते हैं। तो आर्मी ऑफिसर्स का भी आपको पता होना चाहिए, हु हैज कंट्रीब्यूटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लोरा द ट्रीज। एक तो हैं गौर साहब थे, वो तो हाल में ही आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वाज आर्मी ऑफिसर, ही वर्कड इन लद्दाख। उन्होंने बोला बर्ड्स ऑफ लद्दाख बुक है, बहुत अच्छी पिक्टोरियल। अभी तो हमारे पास 84 के बाद काफी सियाचिन ग्लेशियर की टेंशन है और काफी ज्यादा परेशानी है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी टाइम आपके पास होता है एक आर्मी के पास, अगर वो लद्दाख में पोस्टेड है, ही कैन डिवोट टाइम टूवर्ड द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो वो कौन थे? गौर साहब थे। और इसी तरह से सालिम अली, वो तो कुछ भी नहीं थे, एक हिसाब से पढ़ाई भी उनकी इतनी नहीं थी, एंड ही बिकेम द ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, सालिम अली। एक कूलट थे, कर्नल थे, वो शिमला में रहते थे और उन्होंने लिखा फ्लोरा सिमिलेंसिस, शिमला का फ्लोरा उन्होंने लिखा। और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे पीछे जो नेचर है वो आपको अट्रैक्ट अगर करती है, चाहे वो बर्ड्स हों, तितलियां हों, परिंदे हों, फूल हों। अगर आपकी नौकरी कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, बैकग्राउंड कोई हो, वो आपको हैंडीकैप नहीं बनाती। मैंने यू कांट से कि मैं बॉटनी नहीं पढ़ी इसलिए आई कैन नॉट राइट फ्लोरा। जैसे एग्जांपल दी कूलट की, ही वाज ए आर्मी ऑफिसर, तो ही रोड फ्लोरा ऑफ शिमला। और ऐसे ही मैंने बोला सालिम अली, वो तो कुछ भी नहीं थे, ना बॉटनी था ना जूलॉजी पढ़ी हुई, लेकिन ही बिकेम द रेनाउंड बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इंडिया पाकिस्तान के कोई 1200 के करीब परिंदों को, एक एक परिंदों को देखा, ये खाता क्या है, इसका घोंसला किस किस पत्ती से और घास से बनता है, और अंडों का कलर क्या है, बाकायदा मेजरमेंट चोंच की। तो पूरी लाइफ उन्होंने डिवोट कर दी टुवर्ड द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो आज के इस ट्री टॉक में वी विल फोकस ऑन सम ट्रीज जो भी आपके आगे पीछे हैं। ये एक ट्री है पीछे, 2 ट्रीज लगे हैं लंबे लंबे, ये पूंछ ऐसा लग रहा है जैसे पोनी की टेल हो, तो इसको अंग्रेजी नाम बड़ा अच्छा दिया है, पोनी टेल। ठीक है, वेलकम वेलकम, कैसे हैं? ठीक है आप? ये जो प्लांट है, दिखाओ इसके पत्तियों को, ये जो है मिलिंगटोनिया, क्या है इसका साइंटिफिक नाम? एक मिलिंगटन गार्डनर थे वो, बट उनको काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन गार्डनिंग, कल्टीवेटेड प्लांट्स में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। उनका नाम था मिलिंगटन, है ना? तो उससे क्या नाम पड़ गया इसका? मिलिंगटोनिया। और स्पीशीज का नाम है हार्टेंसिस। हार्टेंसिस होता है विच इज ग्रोन इन गार्डन्स। ये लैटिनाइज्ड अंग्रेजी है तो समझनी पड़ती है। मिलिंगटोनिया हार्टेंसिस लिटरल मीनिंग है दिस इज द ट्री। ठीक है, और इसका एक नाम क्या है? नीम चमेली। नीम की तरह पत्तियां, हालांकि बिल्कुल नीम तो नहीं है, बट थोड़ा सा लुक देती है कि जैसे नीम की पत्तियां हो। हालांकि नीम में यूनिपिनेट पत्ते हैं और यहाँ पे बाइपिनेट ट्राई भी होगा। ये छोटा अभी बच्चे का हमने लिया ना, बेसिकली ट्राइपिनेट लीव्स भी हैं, तो देखने पड़ेंगे। तो लीव्स आर अपोजिट। और दूसरी बात क्या है? फ्लावर्स आर फ्रेग्रेंट लाइक जास्मीन। थोड़ा सा हमने फूल लिया था हाथ में, तो थोड़ी सी लुक भी देता है वो चमेली के फूल की तरह। तो इसका क्या नाम हो गया? नीम चमेली। और एक और नाम है, ये इट गोज वेरी टॉल। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आकाश नीम, आसमान की तरफ देखने वाली आकाश नीम। और अंग्रेजी में इसका एक और नाम है इंडियन कॉर्क ट्री। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाते थे पहले, आजकल तो पता नहीं किस तरह को एसिड वैसिड रखते थे, उसमें कार्क होता था। तो वो कार्क जो है एक आता है यूरोप से। वो किस प्लांट का प्रोडक्ट है? किस प्लांट से निकाला जाता है कॉर्क? वो है क्वर्कस। क्वर्कस क्या नाम है उसका? सुबर। क्योंकि सुबेरीन एक वो होता है, जैसे लिग्निन है, सुबेरीन भी होता है, पॉलीसैकेराइड है। तो वो थिक बार्क होती है, उसको काट के क्या बनाए जाते थे? बियर शेयर के बोतलों के ढकने, है ना? तो वो कार्क है एक्चुअल कार्क। बट इंडिया का ये इंफीरियर काइंड ऑफ सेकंड नंबर पे कार्क है, जिसको एक्सप्लॉइट करते रहे हैं। इसकी भी जो बार्क है कैन बी यूज्ड एज फॉर मेकिंग द स्टॉपर्स। तो इसका क्या नाम है? इंडियन कॉर्क ट्री। इसका एक अंग्रेजी नाम क्या हो गया? इंडियन कॉर्क ट्री। बट आर लोकल नेम्स, हिंदी नेम्स आकाश नीम, नीम चमेली। और साइंटिफिक नेम क्या है? मिलिंगटोनिया हार्टेंसी। इसमें नेम प्लेट्स लगे हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फिर लगवा देना। माने ये प्रोमिनेंट ट्रीज जो हैं
दे शुड बी रियली पुट विद नेम प्लेट्स, ताकि आने वाले बच्चों को थोड़ा सा नहीं तो आप बच्चे जो हैं इनका बड़ा फ्रेश ब्रेन है, याद रहेगा आपको। मिलिंगटोनिया हॉर्टेंसी फैमिली कौन सी? लीव्स अपोजिट एंड पिनेट, वो कौन सी फैमिली का करेक्टर है? यहाँ लीव्स अपोजिट होते हैं, सिंपल नहीं। अपोजिट सिंपल एकेंथेसी, अपोजिट सिंपल रूबिएसी, अपोजिट पिनेट, वो किस फैमिली का करेक्टर है? क्योंकि आगे काम आएगा ना, अभी पढ़नी है ना अपने बॉटनी। वो है बिग्नोनिएसी। क्या? 3 नाम ही याद रखने हैं आपने। मैंने क्या बोला? अपोजिट सिंपल लीव्स किस किस फैमिली का करेक्टर है? 2 का बताया, ब्रैंकेट फैमिली एकेंथेसी, और काफी फैमिली रूबिएसी, है ना, ताकि आपको याद रहे। रूबी भी कोई होगी सहेली, नहीं तो बना लो। तो एक हो गया बिग्नोनिएसी। तो इसके साथ एक और प्लांट है, ये क्लाइंबर है। ये जो लटकी हुई है, इसको थोड़ा सा आप तोड़ लो, ये सामने दिख रही है। ये ऊपर से तोड़ो यार, ऐसे भी ये बहुत बढ़िया है। बस दो, ले आओ इसको, मेरे सामने ले आओ इसको खुद। आ जाओ इधर, खड़े हो जाओ इनके पास, खड़े हो जाओ इधर, खड़े हो सामने। हाँ, तो ये आप देखो ना इसको गौर से यार, उनको क्यों उनकी नजर पड़ी। इसके पत्तों के पास ना पीछे देखो, जब बिल्ली होती है ना, बिल्ली के जैसे पॉज होते हैं ना, वैसा कुछ ट्राइलोब्ड हैं, कुछ टेंड्रिल्स। देखो यार, आर यू एबल टू सी, जिसमें 3 उंगलियां जैसी बनी हैं, टेंड्रिल्स हैं। एक निकालो टेंड्रिल, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। ना अगर इसमें नहीं बनी होगी तो और देखो इसकी शाख। अगर इधर ले आओ, नहीं तो मैडम दिखाएं। हाँ, वेरी गुड, यही तो करेक्टर है ना, इसलिए ये दिखाना जरूरी था। इसीलिए इसको नाम है कैट्स क्ला वाइन या कैट्स क्ला क्रीपर। बिल्ली पेंचडू बेल मैंने डोगरी में कर दिया था फिर, ठीक है ना। बिल्ली पेंचडू बेल, कैट्स क्ला क्रीपर। और ये भी किस फैमिली की है? इसी फैमिली की जिसकी आकाश नीम है, नीम चिमितिया, मतलब क्या नाम? बिग्नोनिएसी। और ये जब मिलिंगटोनिया हमारा अपना पेड़ है इंडिया का, वी शुड रेस्पेक्ट एंड प्लांट इट, गो फॉर प्लांटिंग। दिस इज इन्वेसिव एंड इट इज फ्रॉम अमेरिका। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज गार्डन ऑर्नामेंटल फ्लावर, क्योंकि इसके फूल जो हैं बड़े ही, जिस तरह की इनकी जैकेट का अंदर का हिस्सा गोल्डन येलो, ये फ्लावरिंग होती है इसकी। बट इसकी बुरी बात यही है, इट गोज इन्वेसिव। इट स्प्रेड्स इन 2 डायरेक्शंस, वर्टिकली अप एंड हॉरिजॉन्टली। तो ये पूरे कैंपस को, पूरे जम्मू शहर को अपने आगोश में लेने का मादा रखती है, हिम्मत रखती है। इसको फिर काटना पड़ता है बार बार। बट दिस इज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट, और साइंटिस्ट कहते हैं एड्स के लिए इसकी रूट का एक्सट्रैक्ट इज यूजफुल। बट फॉर इंडियन इट इज ए एक्सोटिक और इन्वेसिव एलियन प्लांट। तो 2 किस्म के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं इंडिजिनस या नेटिव, जैसे मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस, या जैसे ब्रैंकेट जस्टिशिया एडेटोडा, और कुछ होते हैं एक्सोटिक्स, जैसे आरोकेरिया हमने लगाया है कहीं, जैसे ये आ गया, इसका नाम क्या है? हाँ, इसका बड़ा यहाँ उल्टा सा नाम है। पहले बड़ा प्यारा नाम था, बिग्नोनिया अंगिस कैटाई। अंगिस होता है उसी के पा, और कैटी, कैटाई बना, कैटाई पढ़ो, कैटी पढ़ो, अंगिस कैटी, बिग्नोनिया अंगिस कैटी। फिर इसका नाम बदला, फिर रख दिया डॉक्जेन था अंगिस कैटी। फिर ये भी नहीं इनको पता, फिर एक और रखा मैकफाडियाना अंगिस कैटी, फिर वो भी बदल दिया। अब है इसका डॉली चंद्रोन अंगिस कैटी। दिमाग खराब कर देते हैं। मैंने एक ही क्लाइंबर के 6 नाम है, 10 नाम है। तो गूगल में आप देख लो जो आपको पसंद आता है, नहीं तो छोड़ो कैट्स क्ला क्रीपर, ठीक है, इजी है। अगर आपको, हाँ, अगर आपको लगता है अंग्रेजी में नहीं आती है तो बिल्कुल, तो फिर डोगरी ठीक है, बिल्ली पेंचडू बेल, ठीक है ना। पेड़ है वो है ड्रम स्टिक ट्री, जिसका एक और नाम है हार्स रेडिश ट्री। दिस इज द ट्री, ये वाला दिस ट्री, एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर ए तमिल नेम। तमिल में कहते हैं इसका नाम है मुरुंगई। क्या है भाई? ये तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज साउथ इंडिया की है, तमिलनाडु के, वो क्या बोलेंगे? मुरुंगई। एंड द सेम बर्ड हैज बीन पिक्ड अप बाय द बॉटनिस्ट
टू नेम इट एज ए जीनस मोरिंगा, ठीक है। और इसके सीड का ऑयल निकलता है, वेरी इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल, इसलिए इसके स्पीशीज का नाम है ओलियफेरा। ओलियई ओलियम से बना हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता है तेल, जैसे पेट्रोलियम, पेट्रा होता है रॉक, ओलियम है तेल। जो तेल हमारे जमीन के अंदर जो है दफन हुए हजारों सालों से पहले के पेड़ पौधे जानवर सारे, वो जो है उनका ही एक किस्म का ऑयल निकला हुआ है अंडर द ग्राउंड, अंडर द रॉक्स, नेम्ड एज पेट्रोलियम। तो ओलिया जो है उसी से ऑयल बियरिंग प्लांट है जे, तो इसका क्या स्पीशीज का नाम हो गया ओलियफेरा। फेरा का मतलब होता है बियर करना, रखना अपने पास, तेल रखना, तो इसका नाम तमिल से निकला मोरिंगा ओलियफेरा। और इसके पत्तों का पाउडर मार्केट में मिलता भी है, यू कैन ऐड टू एनी कुजीन, घरों में जैसे सांबर में डालते हैं। फिर इसके फूलों को आप दही में रायता बना सकते हैं। फिर इसकी जो फलियां होती हैं, फलियां बेसिकली दे आर कॉल्ड एज ड्रम स्टिक्स, वो मिलती है मार्केट में, सोल्ड भी होती है और सांबर में भी डाली होती है, तो आप उसको भी खाएंगे। और इवन इसकी जड़ें मूली की तरह होती हैं, और उसकी भी लोग यहाँ पे जम्मू में भी अखनूर के बगल में आगे कानाचक में इसकी खेती करते हैं, और एक एक साल में इसकी जो मूली है वो उखाड़ी जाती है। इतने बड़े पेड़ को तो नहीं उखाड़ा जाएगा ना मूली के लिए, उसकी खेती की जाती है, कल्टीवेशन होती है, और छोटे पौधों को उखाड़ते हैं मूली की तरह। तो वो जो है अंडरग्राउंड पार्ट इज अवेलेबल इन मार्केट दीज डेज, तो इसको अचार भी खाते हैं। मैंने इसका कोई हिस्सा नहीं है जो एडिबल नहीं है, सर बुड को नहीं खाते, मोटा बुड जो है उसको छोड़ दो, अदरवाइज लीफ, फ्लावर, फ्रूट, रूट। सो इट हैज टू नेम्स, एक है ड्रमस्टिक ट्री, दूसरा है हॉर्स रेडिश ट्री, और इट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, रिचर देन कैरेट सोर्स, rich in vitamin C, richer than oranges. It is rich source of calcium, richer than your milk products. It is rich source of potassium, है ना, even vitamin K. It's a very important plant, और even used in water for water purification. इसका जो सीड है, सीड कलेक्ट कर लिया जाए, अगर उसका पाउडर रख लिया जाए, और आप कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं और आपको लगता है ये झरने का पानी तो है लेकिन शायद गंदा है थोड़ा, तो प्यास लगी हुई है, साथ में और कोई पानी नहीं है, तो क्या करोगे, तो आप कंटेनर अगर हो आपके पास तो उसमें पाउडर 1 चम्मच डालिए, इसका सीड का पाउडर, और उसमें वो पानी डाल दीजिए, तो उसके बाद 15 मिनट के बाद उस पानी को आप कंज्यूम कर सकते, फिट फॉर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। मतलब गंदा पानी भी जो साफ कर सकता है विद इन 10-15 मिनट्स इफ यू यूज इट्स पाउडर। So this is highly nutritious plant. This is included in poverty alleviation programs in many of the African countries. और ये ड्राउट एरिया जो कंडी का क्षेत्र है जहाँ बारिश भी कम होती है, सॉइल भी पत्थरों वाला है, वहां पे ये फिट है, इट ग्रोज वेरी वेल। और दिस इज द ट्री विच आई थिंक नीड टू बी इंक्लूडेड इन योर मेनू ऑल्सो। और एक और ये बुश है पीछे देखो, ये है चांदनी। एक पत्ता तोड़ो बेटा, इसका एक पत्ता तोड़ के देखो, दूध निकलना चाहिए, दूध निकलता है कि नहीं, जल्दी से तोड़ो। और इसकी स्टाक से देखो, स्टाक से निकलना था दूध, नीचे से है ना दूध। और फूल इसके सफेद हैं, इसको कहते हैं चांदनी। चांदनी फिल्म भी थी, पता नहीं आपने नहीं देखी होगी तो गाना सुना होगा। और श्री देवी है ना, हालांकि उसका ट्रेजिक एंड हुआ, वेरी बैड। तो इसको अंग्रेजों ने इसलिए इसका नाम दे दिया, हालांकि हमारा नाम है हिंदुस्तानियों का चांदनी, और अंग्रेजों ने क्या नाम दिया, मून बीम। ये क्या है, मून बीम श्रब, मून बीम ट्री। और इसका ही साइंटिफिक नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, टैबर्न मोंटाना डाइवेरिकेटा, लेकिन एक पहले अच्छा था, वो छोटा था, एरबटाइमिया डाइवेरिकेटा। तो ये भी प्लांट जो है मेडिसिनल है और इंडिया का ही प्लांट है। एक और प्लांट है, इसकी बात करें, वो पीछे देखो, उधर ही चलते हैं, नहीं तो जहाँ ब्लू फ्लावर्स हैं वो देखो। एक फोटो खींच चले जाएंगे, लास्ट फोटोग्राफ। चलो वन मोर फोटोग्राफ। ओके, चलो नहीं बात कर लेंगे, आप ले लो फोटो अपने उससे, आगे जाओ। तब तक ये देखो, 1 मिनट, ये है ब्रैंकड, जिसने नहीं देखी है क्योंकि आप उस पर ब्लैंक फेस दिखा रहे थे, तो दिस इज द जस्टिशिया एडहेटोडा।
और इसके फूल जब देखोगे तो हमारे बुजुर्गों ने इसके फूल देखे थे। और सबसे हमारा नेशनल एनिमल पहले लायन था 72 तक। 72 के बाद 73 से वी डिक्लेयर्ड टाइगर एज अवर नेशनल एनिमल। तो रिपोर्ट भी की है। और जो राजे होते थे ना, वो जिस जगह बैठते थे उस जगह का नाम भी शेर के नाम से था, सिंहासन। ठीक है, आसन, आसन होती बैठने की जगह, और दोनों तरफ शेर रखते थे। वो राजा का मतलब बहुत बलशाली, और बहुत शेरों को मारा भी करते थे। उसमें वाइल्ड लाइफ बहुत थी ना। अब तो लोग ही लोग हैं, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गई, शहर बस गए, अब तो उसकी जगह भी नहीं है बेचारे लायन की। वो गिर नेशनल पार्क में थोड़े से बचे हुए हैं, है ना। अब तो उसके लिए वो मनाही है, यू कैन नॉट किल। तो लेकिन इसका नाम भी लायन के साथ जुड़ता है। अगर फूल होता तो मैं दिखा पाता आपको। फूल ऐसे लगता है, हमारे बुजुर्गों को लगा, अब हमें भी लगना चाहिए, उसी नजर से देखना पड़ेगा फूल को। सिंह जो है लायन जैसे हंस रहा हो, तो क्या नाम हो सकता है इसका? सिंह जैसे हंस रहा हो, ऐसे थोड़ी नाम होगा, सिंहास्य। तो इसका संस्कृत का एक नाम क्या है? डोगरी नाम क्या है? ब्रैंकड़, अड़ूसा। ठीक है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है किसी किस्म के रेस्पिरेटरी ट्रबल्स में, और इवन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट को भी। और इसकी फूलों की चाय, तो जितने भी यहाँ लोग हैं, किसी ने इसकी फूलों की चाय पी नहीं होगी सिवाय मेरे। ठीक है, तो यू मस्ट टेक इट्स। और दिस इज वेरी यूजफुल फॉर हनी बी। शहद की मक्खियां जो है ना, अभी फरवरी में बड़े कम फूल खिले होते हैं हमारे जम्मू में। मार्च में ज्यादा फ्लावरिंग हो जाती है, फरवरी में इसके थोड़े फूल आ जाते हैं पहले। तो मोस्टली हनी बी लेने हम जाएं तो बी जो कीपर्स होते हैं वो कहते हैं जनाब अभी दूसरा हनी नहीं है, अभी सिर्फ ब्रैंकड़ वाला हनी है। तो आई वाज टेकन बैक जब उसने ये बोला। मतलब क्या कहता जी, अभी ज्यादा मैक्सिमम सिर्फ इसी के फूलों से लाया है चुन के, तो अभी ये थोड़ा सा थिक नहीं हुआ है, थोड़ा सा पानी जैसा ही है। दिस इज ओनली। तो हम भी बचपन में इसका जो फूल है चूसते थे, और उसमें मिलता था मीठा नेक्टर, मकरंद। तो किस फैमिली का प्लांट? देखो लीव्स अपोजिट है क्या अल्टरनेट है? देखो जरा, हाथ तो लगाओ जरा खूबसूरत अंदाज से, और देखो लीव्स आर अपोजिट और अल्टरनेट। वेरी गुड। तो अपोजिट लीफ होना करेक्टर किसका बताया? एक एंथेसी का। लेकिन सिर्फ अपोजिट लीफ करेक्टर से नहीं बनता, जैसे रूबिएसी में भी है। तो फिर इस रूबिएसी और एक एंथेसी फैमिली को कैसे डिफरेंशिएट करना? इसमें ब्रैक्ट्स बहुत होती हैं। ब्रैक्ट्स क्या होती है? जैसे फ्लावर है, फ्लावर के नीचे डंडी है, स्टाक, उसके नीचे से भी पत्तियां जैसी निकलती हैं। तो इट इज फुल ऑफ ब्रैक्ट्स, लीफी ब्रैक्ट्स। लीफी ब्रैक्ट्स जो करेक्टर किसका है? एक एंथेसी। ये रूबिएसी में करेक्टर नहीं है। और दूसरा एक और करेक्टर है, वो क्या है रूबिएसी का? और इसका रूबिएसी का जो फ्लावर है वो बाई लिप्ड या टू लिप्ड नहीं है। लेकिन एक एंथेसी में क्या होता है? बाई लिप्ड, टू लिप्ड, माना एसिमेट्रिक हो गया। क्या हो गया? इर्रेगुलर, जाइगोमार्फिक। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोमार्फिक फ्लावर। एक ब्रैंकड़ का फ्लावर क्या है? जाइगोमार्फिक। और रूबिएसी में मोस्टली कैसा है? एक्टिनोमार्फिक, सिमेट्रिकल है। और एक और है, वो है स्टिप्यूल्स। ठीक है, उसमें कौन से स्टिप्यूल्स होते हैं? इंट्रापेटियोलर, दो पत्ते और दो ही स्टिप्यूल्स भी रहती हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस। रूबिएसी का मेन कैरेक्टर है। इसमें पिट्यूल्स, इसमें नहीं होती है स्टिप्यूल्स। देखो कहाँ है स्टिप्यूल्स? देखो इसमें है पत्ते के साथ स्टिप्यूल्स। ढूंढो भाई, पत्ते के स्टाक के पास कोई लीफी चीज है क्या? नीचे नीचे देखो ना, मैच्योर शाक पे नहीं है। ऐसे को क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को एक्स स्टिपुलेट, जिसमें स्टिप्यूल्स नहीं होती हैं। तो कुछ फैमिलीज में स्टिप्यूल्स होती हैं जैसे रूबिएसी, कुछ में नहीं होती हैं जैसे ये हो गया। कईयों में फ्लावर्स जो हैं वो फ्री पेटल्स वाले होते हैं, जैसे गुलाब। गुलाब के एक पंखुड़ी है ना, क्या क्या वो खेलते भी है ना उसमें, एक पंखड़ी इधर। तो कुछ में होते हैं ट्यूबुलर या फनल शेप्ड या बेल शेप्ड। तो कैन यू नेम वन फ्लावर विच हैज द गैमोपेटलस कोरोला? जैसे पीली कनेर, पीली ओलियंडर, येलो वाला देखा है ना, बड़ा आम है हमारे शहर में।
और फ्री वाला क्या है, जैसे वो पीछे है कचनार, ठीक है, वो कचनार है। और ये जो 2 प्लांट्स हैं इनकी हम बात करके फिर हम आगे चलते हैं। छोटी वीडियो बना लेते हैं। थोड़ा सा मैडम शुरू करें आप, कुछ भी आपके इम्प्रेशंस, यादें ट्रीटा की। ट्री टॉक से मैं बड़े सालों से जुड़ी हूँ। मैंने ये ट्री टॉक गांधीनगर कॉलेज में भी अटेंड की। इसमें सर ने पूरे प्लांट्स वहाँ पे एलेबोरेट, और एक पर्टिकुलर प्लांट जिसको मुझे अभी भी याद है, शोका ट्री उसका था, वो जो 2 है ना, एक तो एक सीताशोक, एक राम अशोक। मैंने फर्स्ट टाइम सीताशोक वहाँ से ही लर्न किया था कि वहाँ पे आपने उसको प्लांट भी किया। बहुत बढ़िया इंप्रेशन शेयर किया मैडम ने, है ना। वंडरफुल वंडरफुल। तो मुझे अभी भी याद है। और उसके बाद वहाँ पे गांधीनगर कॉलेज में और भी बड़े सारे ट्रीज आपने इंट्रोड्यूस। उसके बाद हमने वहाँ पे भी, यहाँ पे अपने कैंपस नहीं, वहाँ पे सर आपकी पोस्टिंग थी राम। नहीं, सही सही कह रही हैं। जस्ट मूव टुवर्ड दिस साइड। हमारे जंगल है, नहीं, पीछे बच्चे भी आ जाएंगे, स्टूडेंट्स। प्लीज प्लीज ज्वाइन। मैडम आप इधर आ जाओ हमारे पास, ये थोड़ा सा बच्चों फोटो तो होता रहेगा। ये जो सामने पेड़ है ना, और पीछे भी है, इधर लिखा भी है इसका नाम, साइकस। तो साइकस पर बता रही है सामने वाले ट्री का उधर भी मुड़ते हैं हम। एक साइकस पीछे है, एक साइकस इधर है। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं और आर्मी ऑफिसर्स हैं, इन दोनों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। यू नो, आपको 2-4 आर्मी ऑफिसर्स के और 2-4 फॉरेस्ट ऑफिसर्स के नाम याद होने चाहिए। दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द फ्लोरिस्टिक्स